मशीन वो आदि पूरा निकल साथ साथ जब करो और बिजली की कमी लगे का लाख ज्यादा बिजली चल हमारे देश में एक टावर दूसरा तो था Good afternoon to all of you. Now I am Manas Sinha, and today I am with my topic preschool teaching methodology. So now we will discuss about this topic. It is a very interesting topic, preschool teaching, I think, and different factors related to this topic. We will discuss it. So what is preschool teaching methodology? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत ही इसके इंटरेस्टिंग से फैक्ट भी हैं। अगर इनके फैक्ट्स पे भी हम डिस्कस करेंगे। Learning teaching. Sorry ma'am, I did not ask you what you are using. I am taking you back to your childhood days when you were working as a learner. We'll start from our basic days when we were learning. Will not remember us now as a teacher. That stage will come. We'll first remember our old days, how we were learning, what makes us the way we were learning. Some of us must be struggling in class. Teacher keeps on repeating the words. Teachers keeps on speaking something, but we were out of this mind. We were out of the class, roaming somewhere out. Means physically present in class, but the mind was not present in class. So many struggles we must be dealing with. So I'll ask teachers, what kind of struggles you were dealing with, or what was the best way which made you learn? Reading loudly. So most of us have said reading loudly. I was a visual and kinesthetic learner. Okay, listen carefully and making notes. Okay, listening and reading, reading loudly.
sharing views, making projects, watching visuals, listening, watching visuals, writing notes, volume is not coming, okay, sorry. Reading loudly, reading, practicing with writing and reading loudly, watching rather than listening, okay. Writing notes while listening, okay. Writing notes while listening, okay. Reading loudly, learning, recording, okay. Speak clearly, making diagrams. So, all the teachers, good afternoon. Now, our topic is preschool teaching methodology. Sorry for disturbance. Now we are going to start it. Preschool teaching methodology. What is preschool teaching methodology, and what is use of this methodology in current environment? इसके सारे facts क्या हैं? आखिर we are living in a developing country, and in a developing country like India, it is a very you can say it is not a cheap method. You can say it is not a cheap method because we are living in a developing country. तो आखिर फिर इस मेथड को प्री स्कूलिंग जो हमारा प्री स्कूल टीचिंग मेथड्स है, इस मेथड के थ्रू हम किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट में और उस इन्वायरमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग इस मेथड को सक्सेसफुली अप्लाई कर पाए। तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर प्री स्कूल टीचिंग मेथोडोलॉजी होती क्या है। आप इसे प्री स्कूल टीचिंग मेथोडोलॉजी भी कह सकते हैं अगर आप इंडियन एनवायरनमेंट में हैं। If you are living in a different countries, different countries, you are living in a developed country like America, like Britain, so you can say it is a pre-primary teaching methodology. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में जो स्कूलिंग स्टार्ट होती है वो करीब आफ्टर 4-5 इयर्स के आफ्टर स्टार्ट होती है। अलग अलग कंट्रीज में आप जाते हैं तो कहीं पे बच्चों को आफ्टर 2 इयर्स ही एजुकेशन के लिए या लर्निंग के लिए आप कह सकते हो लर्निंग के लिए भेज दिया जाता है। और जितने भी अलग अलग इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें चाहे वो डिफरेंट एरियाज के अकॉर्डिंग, तो वहां पे लर्निंग के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। लेकिन जिस इन्वायरमेंट में हम हैं तो पहले तो मैं उस पर फोकस करूंगा कि उस इन्वायरमेंट में हम किस तरीके से इस प्री स्कूल टीचिंग मेथोडोलॉजी के थ्रू इफेक्टिव टीचिंग के वे को रन करा पाए स्मूथली। तो देखिए ये जो प्री स्कूलिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी है, सबसे पहले ये जानना हमें जरूरी हो जाता है कि ये किस एज ग्रुप के बच्चों पे अप्लाई होती है। तो जो एज ग्रुप यहाँ पे है वो 2 से लेके 6 इयर्स तक के बच्चे हैं। और इसमें अगर आप उसमें भी अगर आप इनके एज को और अधिक कंक्लूड करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं 2 to 5 इयर्स, और अगर इसको थोड़ा बढ़ा के लेना है तो 3 to 6 ईयर। तो इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं इन बच्चों पे ये मेथड्स अप्लाई होंगे जो प्री स्कूल टीचिंग मेथोडोलॉजी से जुड़े हुए हैं। अब ये बच्चे चूंकि जो है बिल्कुल स्टार्टिंग एज के हैं, अभी इन्होंने जस्ट इन्वायरमेंट में कदम रखा ही है। अब उस इन्वायरमेंट से ये खुद को कैसे अटैच करते हैं, ये खुद उस इन्वायरमेंट से कैसे जुड़ पाते हैं, कैसे उन सारी चीजों से उस इन्वायरमेंट से कैसे नॉलेज ले पाते हैं, इसी को बेस्ट करते हुए जितने भी प्री स्कूलिंग टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं वो यूज में लाई जाती हैं। अब
नेक्स्ट यहाँ पे बात ये आती है कि आखिर हमें इनकी जरूरत क्यों है। Why do we need pre-schooling teaching, pre-school teaching methodology? Why do we need? तो हमें इसकी नीड आखिर इसलिए है क्योंकि जो हमारा बच्चा है वो बच्चा अभी जस्ट अगर हम उसे एक सब्जेक्ट वाले एनवायरनमेंट में या एकेडमिक एनवायरनमेंट में विथ डिफरेंट सिलेबस उसे डाल देते हैं तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उन चीजों को उसे खुद को रिलेट कर पाना, उन चीजों को समझ पाना। उससे बिफोर हमें उससे उसके इन्वायरमेंट से जुड़ना होगा और उसके बाद फिर कहीं अगर हम उससे सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज देते हैं या सिलेबस बेस्ड नॉलेज देते हैं, एकेडमिक नॉलेज देते हैं तो वो उससे बाद का प्रोसेस होता है। लेकिन एक बच्चे को जो कि बिल्कुल अभी स्टार्टिंग एज में है, बिल्कुल अभी यहाँ उसने जस्ट इन्वायरमेंट से खुद को जोड़ा ही है और उसके जोड़ने के साथ ही हमें उसे उस इन्वायरमेंट का नॉलेज देना होगा। तो ये जितने भी प्री स्कूलिंग टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं ये स्टूडेंट को नेचर से कनेक्ट करने पे बेस्ट हैं। चाहे आप कोई भी मेथड उठा लें, मैं अभी एक एक करके डिस्कस करूंगा उन सभी मेथड्स पे और वो सभी मेथड्स उन सबके बेस में अगर आप पाएंगे तो उसमें एक ही चीज हमें देखने को मिलेगी जो सब में कॉमन होगी, वो ये है कि इनमें से कोई भी मेथड इस बात से पे जोर नहीं देता है कि बच्चे को नेचर से अलग हटा करके एजुकेशन दी जाए। तो कुल मिला अगर हम टोटली अगर इसे देख लें तो ये हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये मेथड बच्चे को इन्वायरमेंट से जोड़ते हुए एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाता है। अब बात ये करते हैं कि बच्चों को आखिर इन्वायरमेंट से कैसे जोड़ा जाएगा, वो तरीके कौन से हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल लर्निंग एज है, बिल्कुल स्टार्टिंग की लर्निंग एज है। आप ऐसा समझे, बिल्कुल स्टार्टिंग, यानी कि बच्चा अभी मुश्किल से 2 साल का होने को आया है और वो 2 साल का बच्चा अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपने से कोई स्पेशल क्रिएटिविटी या थिंकिंग उस तरीके से डेवलप कर पाए जिसमें वो चीजों को ऑब्जर्व करे। तो यहाँ पे जो उसका एनवायरनमेंट होगा वही उसे चीजों को सीखने की और उनसे खुद को रिलेट करा करके नॉलेज देने का एक मींस बनेगा। तो अब इस जब ये सारा हमारे पास में सिनेरियो अवेलेबल है तो अब हमें इसमें अलग अलग मेथड, अब मेथड्स में भी अगर मैं बात करूं तो इसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है वो है प्ले वे मेथड। तो अगर जब भी आप प्री स्कूल टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो यही है, प्ले वे मेथड। अब ये प्ले वे मेथड क्या है? प्ले वे मेथड इट मींस खेलना, और आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों के लिए खेलने का मतलब वो सारी एक्टिविटी है जो कि वो सेल्फ से कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे 2 इयर्स में केवल दौड़ना ही, धीरे धीरे दौड़ना ही सीख पाते हैं, तो वही उनके लिए खेल है। अब उस दौड़ने के क्रम में, उस दौड़ने के सीक्वेंस में जब वो दौड़ रहे होते हैं तो कई बार गिरते भी हैं, गिर के फिर से खड़े होना, फिर से समझना चीजों को, जिस एनवायरनमेंट में, जिस फील्ड में वो दौड़ रहे हैं उस फील्ड को ऑब्जर्व करना, उसके एनवायरनमेंट से खुद को रिलेट कर पाना, ये उनके लिए एक एजुकेशन का वर्क कर रहा है। और ये जितने भी इस तरीके के स्कूल होंगे जहाँ पे प्री स्कूल टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज की जा रही होगी ऐसे बच्चों के लिए जो कि बिलो 5 इयर्स हैं, वहां पे ये प्ले वे मेथड्स अप्लाई किए जा सकते हैं। एंड वी ऑल आर टीचर्स, हम जितने भी टीचर्स हैं, हम टीचर्स के लिए भी, क्योंकि हमने ज्यादातर अपना टाइम एकेडमिक एनवायरनमेंट में ही बिताया होता है जहाँ पे हम बच्चों को विथ बुक्स, विथ सिलेबस, विथ स्पीकिंग, विथ राइटिंग एजुकेशन दे रहे होते हैं, चीजों को सिखा रहे होते हैं। उस कंडीशन में उस कंडीशन से बाहर निकल के भी बच्चों को बहुत अच्छे से नॉलेज दी जा सकती है। इसी को समझने के लिए इस मेथड को हमें क्लियरली इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझना चाहिए। अब बात अगर हम ये कर लें कि ये जो प्ले वे मेथड है, इस प्ले वे मेथड में और क्या क्या चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं, तो जैसे कि प्ले वे मेथड में मैंने आपको बताया, आप खेल से जुड़ी हुई सभी चीजें, चाहे वो रनिंग हो,
चाहे वो हाइड एंड सीक के गेम हो, चाहे वो डिफरेंट चीजों की पजल्स वगैरह जो भी है, पजल्स की बिल्डिंग्स वगैरह, तो इन सारी चीजों को आप यूज कर सकते हैं और इनके थ्रू बच्चे सेल्फ से नॉलेज लेते हैं। यहाँ पे कोई फोर्सफुली उन्हें नॉलेज नहीं दी जा रही है, कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया जा रहा है जो उनके ऊपर फोर्स दे और जबरदस्ती उन्हें सीखने पे मजबूर करे। क्योंकि यहाँ हमें यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो स्टूडेंट है वो इस एज में नहीं है कि हम उसे फोर्सफुली चीजों को सिखा पाए। तो यहाँ पे हमें विदाउट फोर्स लर्निंग करानी है। आज के टाइम पे हम जहाँ पे टीचिंग करा रहे होते हैं वहां पे हम बहुत बार देखते हैं स्टूडेंट को डांट करके, बहुत बार उनके ऊपर प्रेशर देख करके, उन्हें वर्क करने को, उन्हें उनके चीजों को लर्न करने के लिए हम उन्हें टास्क वगैरह देते हैं और उनको जो है टाइम बाउंडेशन लिमिट, एक टाइम उनके लिए हम बाउंड कर देते हैं कि आप इस टाइम में इस वर्क को पूरा करके लाना है। लेकिन ये जिस मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्री टीचिंग मेथड, इसमें आप इसका कहीं भी यूज नहीं कर सकते। ये मेथड उस मेथड से बिल्कुल अलग है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता है, जो चैप्टर्स के अकॉर्डिंग चलता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच के इस डिफरेंस को हमें समझना होगा। ये मेथड खुले इन्वायरमेंट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ देने के लिए है कि वो अपने अकॉर्डिंग, जैसे अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, जिस भी तरीके से वो डिफरेंट टाइप के टास्क करके नॉलेज अचीव करें। वहां पे टीचर का काम एज ए गाइडर होगा। वो टीचर बस टाइम टू टाइम, अगर बच्चा कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है जो उसे हार्म कर सकती है, उसके बॉडी को हार्म कर सकती है, तो उस टाइम पे बस टीचर एज ए इंस्ट्रक्टर वहां पे हो सकते हैं और बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है विद देयर गेम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, कि वो उन गेम्स के थ्रू एक्टिविटी करें और सीखें। तो ये हमें पहले इन चीजों को अप्लाई कर लेना है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई इस मेथड को अगर हम यूज कर रहे हैं, प्ले वे मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं, तो इसके बेनिफिट्स क्या है? क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, हम जितने भी टास्क करवाते हैं, उन सभी टास्क के कुछ बेनिफिट्स होते हैं जिन्हें माइंड में रख के इन चीजों को अप्लाई किया जाता है। तो बेनिफिट्स पे अगर आप इसके डिस्कस करते हो, तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि बच्चे के माइंड, अभी बच्चा जिस एज में है वहां उसे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है कि उसके माइंड को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए ताकि उसका माइंड खुल के डेवलप हो सके। अगर हम उसे डांटते हैं या कुछ उसे टास्क दे देते हैं जो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, तो उस सिचुएशन में उसका माइंड बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट ऐसा कहते हैं, बहुत सारी रिसर्च इस बात का दावा करती है कि जब भी आप किसी के बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो वहीं से उसके माइंड का डेवलपमेंट रुक जाता है। तो अगर आप बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट पूर्ण रूप से चाहते हैं तो बच्चे को फ्री छोड़ना विद हिज एनवायरनमेंट यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ बिल्कुल फ्री होगा एक्टिविटीज करने के लिए, तो उसके माइंड का जो ग्रोथ है वो कहीं अधिक तेजी से होगा उस बच्चे के कंपैरिजन में जिससे हमने विद डिफरेंट वर्क्स एंड विद लिमिट टाइम के साथ में बाउंड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे इन चीजों को हमें समझना है। दूसरा करवा देते हैं इनका। यस मैम। एंड देन आफ्टर यू कैन से हियर कि ये जो प्ले वे मेथड्स हैं, इन प्ले वे मेथड्स को अगर हम अप्लाई करते हैं उन बच्चों पे जो कि बिलो 5 इयर्स हैं, तो उन बच्चों से हम कहीं अधिक अच्छा रिस्पॉन्स पा पाएंगे जब वो बच्चे प्राइमरी स्टेज पे होंगे, यानी प्राइमरी स्कूलिंग के लिए गए होंगे, तो वो कहीं अच्छा रिस्पांस देंगे उन बच्चों के कंपैरिजन में जो डायरेक्ट प्राइमरी क्लासेस में आ गए हैं, जो डायरेक्ट आफ्टर 5 इयर्स गए हैं एजुकेशन के लिए, जहां पे उनके पास बुक्स वगैरह है और बुक्स की रीडिंग के थ्रू, डिफरेंट वर्ड के स्पीकिंग के थ्रू वो चीजों को सीख रहे होंगे। उनके कंपैरिजन में वो बच्चे जो कि प्री स्कूलिंग टीचिंग के अंडर में रह चुके हैं, उन्होंने जो लर्निंग की होगी और उनके माइंड का जो ग्रोथ हुआ होगा वो उन्हें हेल्प करेगा उनकी प्राइमरी स्टेज की जो लर्निंग होगी उसमें।
तो इंडियन इन्वायरमेंट में हम ये पाते हैं कि जो इंडियन इन्वायरमेंट है यहाँ पे, चूंकि हम सभी जानते हैं कि इंडिया कोई बहुत रिच कंट्री नहीं है, और ये जो प्री स्कूलिंग मेथड होते हैं ये थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कूल का एनवायरनमेंट बच्चों के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे उन सारे गेम्स जो कि बच्चों के माइंड को डेवलप कर सकें, जिनसे बच्चे सीख सकें, उसके लिए एक पूरा सेटअप तैयार करना होता है। और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो सभी पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो बच्चे को तब स्टार्टिंग से ही 2 ईयर्स से ही वहां भेज पाए और उनके लिए जो भी चीजें हैं वो पे कर पाए। तो इसलिए इंडियन एनवायरनमेंट में इसकी बहुत चर्चा नहीं होती है। लेकिन अगर आप इसको अदर कंट्रीज से यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो वहां पे इसकी स्टार्टिंग हो चुकी होती है। जब बच्चा 2 साल के करीब का हो रहा होता है तभी से वो इन प्री स्कूल टीचिंग मेथोलॉजी से जुड़ चुका होता है। और जो यहाँ पे प्री स्कूलिंग टीचिंग मेथोलॉजी में जो टीचर होते हैं वो किसी कलाकार से कम नहीं होते, क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, उन्हें वो सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि आखिर वो बच्चों के साइकोलॉजिकल कंडीशंस को अच्छे तरीके से समझ पाने में कैपेबल होने चाहिए, ताकि वो उस बच्चे को उसके एनवायरनमेंट के साथ डील कराने में उसकी हेल्प कर पाए। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा है वो एक ऐसा ही मेथड है, वो है वॉल्डॉर्फ मेथड। वॉल्डॉर्फ मेथड भी ऐसे ही बच्चों के लिए बना हुआ है जो कि बिलो 6 इयर्स है। अभी इसके पहले मैं डिस्कस कर रहा था प्लेवे मेथड की, और जो प्लेवे मेथड है इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्ले वो बच्चों के अकॉर्डिंग वो जिसमें भी कैपेबल हो, वो हाइड एंड सीक का गेम करने में कैपेबल हैं वो करेंगे, जो रनिंग करने में कैपेबल हैं, जो सिंगिंग म्यूजिक जिस भी तरीके की चीजों से वो खुद प्ले कर पा रहे हैं खुद को, और खुद को नेचर के साथ जोड़ पा रहे हैं, और उस नेचर के साथ जोड़ने के क्रम में उन्हें जो एक्सपीरियंस मिल रहा है उस एक्सपीरियंस से होने वाला नॉलेज उनके माइंड को काफी तेजी से ग्रोथ कराएगा। और इसका रिजल्ट तब देखने को मिलेगा जब वो एकेडमिक क्लासेस में विद देयर सिलेबस होंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वॉल्डॉर्फ मेथड की, तो ये वॉल्डॉर्फ मेथड भी जस्ट वैसा ही मेथड है। इस मेथड में भी बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है। अब वॉल्डॉर्फ मेथड ये इसकी स्टार्टिंग हुई कहाँ से, तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, क्योंकि ये काफी रोचक है और काफी इंटरेस्टेड होने के कारण एक्चुअली जो इसको जो रुडोल्फ स्टेनर जो कि इसके फाउंडर रहे, तो रुडोल्फ स्टेनर वो जर्मनी गए हुए थे एक फैक्ट्री में वर्क करने। तो फैक्ट्री में वर्क करने के टाइम पे फैक्ट्री के जो ऑनर्स थे उन्होंने फैक्ट्री में जो वर्कर्स वर्क किया करते थे उनमें बहुतों के बच्चे ऐसे थे जो बिलो 5 इयर्स थे, बिलो 6 इयर्स थे, बिलो 4 इयर्स थे। तो ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने चाहा कि उन्हीं के एनवायरनमेंट में जहाँ पे उनके पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं उसी के अगल बगल कोई ऐसा स्कूल हो जहाँ पे उन बच्चों को जोड़ के रखा जा सके, ताकि उनके पेरेंट्स भी अपने वर्क को फ्री माइंड होके कर पाए। तो उन्होंने उनसे बात की, स्टेनर से बात की कि मैं चाहता हूं कि इसी एनवायरनमेंट में बच्चों के लिए स्कूल हो, आप इसमें कुछ सजेशन दे सकते हैं या इस स्कूल को खोलने में और अदर चीजों में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो स्टेनर ने उस टाइम पे उन्होंने इस सजेशन इस चीज को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद वो जो कंपनी के बच्चे थे उनको उन्होंने उस एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में जो कि बिलो 5 इयर्स 6 इयर्स थे, उन्हें वहां पे टीचिंग स्टार्ट की। और इनकी जो टीचिंग थी वो म्यूजिक के थ्रू थी, वो डिफरेंट जो हैंडीक्राफ्ट हैं, डिफरेंट आर्ट्स हैं, डिफरेंट स्टोरीज हैं, इन स्टोरीज के थ्रू वो वहां पे पढ़ाया करते थे बच्चों को। क्योंकि बच्चों की एज तो बहुत बिलो एज के हैं, बिलो 5 इयर्स हैं, बिलो 6 इयर्स हैं, तो वो उन्हें स्टोरीज वगैरह सुना करके, बहुत सारे आर्ट वगैरह बना करके, चीजों को कॉग्निटिव नॉलेज दे करके उनका, यानी चीजों को फील करा करके, महसूस करा करके उन्होंने ये सारे ट्रिक्स यूज किए उन बच्चों को नॉलेज देने में, और जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए, इसके रिजल्ट काफी अच्छे आए। और उस रिजल्ट के कारण बाद में ये मेथड वहां के जो दूसरे एरियाज थे उन एरियाज में भी फैलने लग गया, और बाद में आज ये मेथड इतना सक्सेसफुल हुआ कि हम इसे डिफरेंट जगहों पे देख पाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में आज ये वर्ल्ड वाइड इस मेथड को यूज किया जाता है ताकि एजुकेशन दी जा सके बच्चों को।
और उनके खुद के एनवायरनमेंट में दी जा सके। तो अब ये जो वॉल्डॉर्फ मेथड है, जिसको कभी मैंने खुद बताया कि रॉबर्ट स्टेनर जो कि इसके फाउंडर रहे, रॉबर्ट स्टेनर ने इस मेथड में बच्चों के लिए जो जो चीजें यूज की, चाहे बात आप म्यूजिक की कर लें या आप बात आर्ट की कर लें या बात आप स्टोरी की कर लें, तो अगर स्टोरी है, म्यूजिक है, तो ये अलग अलग जो स्टोरीज हैं, इन स्टोरीज से भी बच्चों के अंदर एक इमेजिनेशन की क्वालिटी डेवलप होती है। और अभी जिस एज में वो है, उस एज में आप उन्हें जिस तरह से इमेजिन करवाएंगे, एक बार आप उनके माइंड में जिस तरीके का इमेजिनेशन डाल देंगे, वो इमेजिनेशन उनके लिए काफी लंबे समय तक पड़ा रहेगा और उसी के बेस पे उनकी आगे की एजुकेशन डेवलप होगी। तो अगर हम उन्हें कोई बहुत ही अच्छी ऐसी स्टोरी जो सुना पा रहे हैं जो कि किसी एजुकेशन से जुड़ी हुई है या जो उनके कैरियर के बिल्डिंग से जुड़ी हुई है, या वो स्टोरी जो उनमें इमेजिनेशन की क्वालिटी को कई गुना बढ़ा सकती है, उस इमेजिनेशन की क्वालिटी से उनके माइंड का डेवलपमेंट वहां पे हो चुका होता है। इमेजिनेशन क्वालिटी क्या कर, जब बच्चा इमेजिन कर रहा होता है तो विथ इमेजिनेशन उसके माइंड का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। वो माइंड जो कि अभी बधा हुआ है, कुछ लिमिटेड चीजों तक ही सीमित है। अभी 2 इयर्स का बच्चा क्या कर रहा है, उसका नॉलेज, उसके माइंड का नॉलेज जुड़ा हुआ है उसके पानी पीने से, उसके भोजन करने से, उसके मम्मी पापा जिनको वो देख पा रहा है, बस उसी इन्वायरमेंट से वो जो तक ही वो अटैच है। अब बच्चे को हम अटैच कर, उसके माइंड को हम अटैच कर रहे हैं दूसरी चीजों से, यानी विद डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट। उन आर्ट में अलग अलग टाइप की क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिविटी जो कि काफी तेजी से अट्रैक्ट करती हो बच्चे को। तो जितनी तेजी से अट्रैक्ट कर पाएगी वो आर्ट, उतना तेजी से बच्चा उस चीज से खुद को जोड़ेगा, और जैसे ही वो खुद को उससे जोड़ेगा वैसे ही उसके माइंड का ग्रोथ वहां पे कई गुना फास्ट होना स्टार्ट हो चुका होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो वॉल्डॉर्फ मेथड है वो भी इन्हीं सारी चीजों का यूज करते हुए बच्चे को उसके एनवायरनमेंट से कनेक्ट कराता है, और विद द कनेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट बच्चा इतना कैपेबल हो पाता है कि वो आगे और काफी फास्ट तरीके से लर्निंग कर पाए। क्योंकि यहाँ पे हम सभी यहाँ टीचर्स बैठे हुए हैं, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि कुल 47 पार्टिसिपेंट्स अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे मेथड्स, इन मेथड्स के जितने फाउंडर्स रहे हैं, इन सभी का एम क्या है, इफेक्टिव टीचिंग, बच्चे को इफेक्टिवली टीच किया जा सके, ताकि जो टीचिंग के प्रिंसिपल्स हैं हम उनको पा पाए, टीचिंग के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को फुलफिल करते हुए हम टीचिंग के फाइनल एम तक खुद को पहुंचा पाए। इन्हीं के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। सीबीएसई ने ये जो सारी चीजें लॉन्च की हैं हम सभी टीचर्स के लिए, वो भी इसी से जुड़ी हुई हैं। और ये जो प्रोग्राम जो अभी मैं वॉल्डॉर्फ मेथड जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि स्टेनर का दिया हुआ मेथड है, ये सारी चीजें इसी से, यानी इफेक्टिव टीचिंग। और इफेक्टिव टीचिंग का एम क्या है कि बच्चे के माइंड को जितना ज्यादा से ज्यादा खोल करके उसको जितने अच्छे से एजुकेशन उस तक पहुंचाई जा सके। क्योंकि एजुकेशन के लिए बार बार ये कहा गया है कि एजुकेशन का मतलब सिलेबस का नॉलेज बिल्कुल नहीं होता है, एजुकेशन का मतलब रीडिंग और राइटिंग बिल्कुल नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है बच्चे को इतना कैपेबल बना देना कि वो किसी भी एनवायरनमेंट में हो, उस एनवायरनमेंट में वो सरवाइव कर पाए। तो ये एजुकेशन का फाइनल एम है कि बच्चे को इतना कैपेबल बना देना, इतना स्ट्रॉन्ग बना देना कि वो जिस भी एनवायरनमेंट में है उस एनवायरनमेंट में वो खुद को अच्छे से रख पाए। तो इस एम को अगर हम स्टार्टिंग बिल्कुल उसके प्री स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी क्लासेस में पहुंचने से पहले ही अगर हम इन चीजों की स्टार्टिंग कर देते हैं तो इसके रिजल्ट इन फ्यूचर, जब वो बच्चा प्राइमरी स्टेजेस पे होगा, प्राइमरी क्लासेस में जा रहा होगा, जूनियर क्लासेस में जा रहा होगा, इवन सेकेंडरी लेवल तक, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, तो उनके रिजल्ट हमें वहां पे देखने को मिलेंगे। और इंडिया जैसी कंट्री में हमें इस बात पे अभी जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो इंडिया जैसी कंट्री में भी आज हमारी जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं वहां पे ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो कि स्पेशली ऐसे ही बच्चों के लिए हैं जो कि बिलो 5 इयर्स हैं और 2 to 5 इयर्स के बीच के हैं, और वहां पे उन्हें इन सभी मेथड से उनके माइंड के ग्रोथ को, उनके माइंड को फैलाया जाता है जिससे इन फ्यूचर वो इसका एडवांटेज अपने एजुकेशन में ले पाए। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारा मेथड है
इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्डॉर्फ मेथड, तो ये तो मुझे लगता है कि आप सभी समझ चुके होंगे कि जो वॉल्डॉर्फ मेथड है, ये मेथड किस तरीके से बच्चे को उसके इन्वायरमेंट से रिलेट कराते हुए उसे इतना सर्वाइवल बना देता है कि वो बच्चा अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ पाए और इमेजिन कर पाए चीजों को, और विथ इमेजिनेशन वो अपने माइंड को एक अगले स्टेज पे यानी नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचा पाए। आगे देखेंगे मॉन्टेसरी मेथड। हाँ, ये जो हमारा नेक्स्ट मेथड है मॉन्टेसरी मेथड, मुझे लगता है कि हमारे बहुत से टीचर्स इससे परिचित होंगे, बहुत ही फेमस है, बहुत बार नाम सुना गया है, और जो लोग भी बीएड वगैरह करते हैं या जब भी आप एजुकेशन शिक्षा शास्त्र की कोई भी बुक उठा लें तो उसमें इस मेथड को बिल्कुल फर्स्ट सेकंड चैप्टर में बिल्कुल आगे में रखा हुआ आपको मिल जाएगा, मॉन्टेसरी मेथड, जो कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी का दिया हुआ मेथड है, जो कि इटली से बिलोंग करती थी। और मैडम मारिया मॉन्टेसरी खुद भी एक टीचर रही, और इन्होंने भी उस टाइम पे अपनी टीचिंग के एक्सपीरियंसेस से जो फील किया, जो इनका एक्सपीरियंस रहा, और जो बच्चे इनके पास आते थे उन बच्चों की एक्टिविटीज को जब ये देखा करती थी, उन छोटे बच्चों की एक्टिविटीज को जो कि 5 इयर्स के करीब के हैं, 6 इयर्स के हैं या उससे भी बिलो एज के हैं, तो जब उनको उसको उन्होंने देखा तो जो इनका जो खुद का एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्होंने इस मॉन्टेसरी मेथड को फाउंड किया। और ये मॉन्टेसरी मेथड भी यही कहता है कि बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ दो, यानी कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि बच्चा खुद की एक्टिविटीज से जितना सीखता है उतना वो लर्निंग और रीडिंग से बिल्कुल नहीं सीखता। तो ये मॉन्टेसरी मेथड ये कहता है कि इस बात के बहुत सारे प्रूफ हैं कि बच्चे को आप रीडिंग कितना भी करा लो, कितना भी स्पीकिंग करा लो, उसके थ्रू उसने जो सीखा होगा वो लिमिटेड होगा। आपने उसे डांट डांट के बोल बोल के जो रटाया होगा, बस बाद में वो वही आपको सुना देगा। लेकिन अगर आपने बच्चे को फ्री छोड़ा हुआ है उसके इन्वायरमेंट में, अगर बच्चा बिल्कुल फ्री है अपने अकॉर्डिंग चीजों को सीखने के लिए, आपने बस उसे एक इन्वायरमेंट दे दिया है, और उस इन्वायरमेंट में जब आप देख रहे हो कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि बच्चा भी बहुत ज्यादा नॉलेजेबल तो नहीं है कि उसे ये समझ में आ जाए ये चीजें उसके लिए हार्मफुल है, तो उस कंडीशन में जब वो उन ऐसे कोई खेल कर रहा हो जो उसको नुकसान दे सकते हैं, उसकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, तो बस आप उसे वहां पे रोक लें। इसके अलावा आप उसे फ्री छोड़ दें खुद के अकॉर्डिंग सोचने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए, प्ले करने के लिए, थिंक करने के लिए, आर्ट करने के लिए, म्यूजिक करने के लिए, इमेजिन करने के लिए, ताकि इन सभी चीजों के थ्रू वो अपने माइंड को और अधिक स्प्रेड करवा पाए। और जैसे तो यहाँ पे हमारा एम जो है, जो बच्चे 2 to 6 इयर्स हैं उनके लिए जो प्री स्कूल टीचिंग मेथोडोलॉजी है, ये यही कहती है कि बच्चे के माइंड को हमें खोलना है, जो कि अभी बहुत लिमिटेड है, जो कि अभी उसके पेरेंट्स तक जुड़ा हुआ है, उसके घर के फैमिली मेंबर्स तक जुड़ा हुआ है, उसको उस इन्वायरमेंट से अब थोड़ा सा हमें आउट करते हुए अदर चीजों के साथ भी रिलेट करा देना है। ये इस जो प्री टीचिंग मेथोडोलॉजी है, यही इसका सबसे बड़ा एम है। और ऐसे इन्वायरमेंट में रिलेट कराना है, ऐसे इन्वायरमेंट से रिलेट कराना है जिस इन्वायरमेंट में उसके ऊपर किसी भी प्रकार का फोर्स ना हो, यानी फोर्सफुली उससे वर्क न कराया जा रहा हो, बल्कि वो वर्क उसकी सेल्फ जो उसके अंदर जो सेल्फ इच्छा है उसके अकॉर्डिंग हो, तो सेल्फ विश के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आगे जैसे ही जब बात करते हैं नीड्स एंड बेनिफिट ऑफ मॉन्टेसरी मेथड, तो मॉन्टेसरी मेथड आज आपको बहुत सारे मॉन्टेसरी स्कूल इंडिया में भी मिल जाएंगे, क्योंकि मॉन्टेसरी नाम यूज करने के लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत सारे ऐसे मॉन्टेसरी स्कूल मिलेंगे। लेकिन उन मॉन्टेसरी स्कूल्स में भी भले ही उनका नाम मॉन्टेसरी स्कूल है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं खुद एक मॉन्टेसरी स्कूल, इसका की नाम ही था ऐसे ही उत्कर्ष मॉन्टेसरी करके, तो मैंने पढ़ा हुआ था थोड़ा बहुत मॉन्टेसरी मेथड के बारे में, तो मुझे लगा कि शायद मैं स्कूल में इन करूंगा तो मुझे वही बहुत बिलो 5 इयर्स या बिलो 6 इयर्स के बच्चे मिलेंगे जो कि इन्वायरमेंट में स्टडी कर रहे होंगे, जहाँ पे कोई फोर्सफुल इन्वायरमेंट नहीं होगा,
और इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट थीम्स होगी, क्योंकि मॉन्टेसरी मेथड ही कहता है कि एक हॉल जरूर रखिए आप स्कूलों में, जिस हॉल में जितने भी मेथड, जितनी भी थीम्स हैं, चाहे वो गेम वगैरह से जुड़ी हुई हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गेम्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको आप रखिए। और उसके अलावा कुछ रूम्स होने चाहिए, जिन रूम्स में बच्चों के खाने से लेकर के उनके सोने तक के लिए, यानी उनको रेस्ट भी दिया जाए। अगर बच्चा रेस्ट करना चाह रहा है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बच्चा भी बहुत बिलो एज का है, तो उसे रेस्ट करने के लिए भी आप छोड़ देंगे। फोर्स नहीं करना है कि नहीं ये तो स्कूल में आया है और यहाँ सो नहीं सकता या रेस्ट नहीं कर सकता। तो ये कुछ मॉन्टेसरी स्कूल का। तो मैं जब उस स्कूल में गया और वहां पे मैंने देखा कि वो जैसे सिंपल वे में, जैसे हम अपने यहाँ टीचिंग वगैरह कराते हैं कि स्कूल का क्लासरूम होता है, बेंच वगैरह होती है, बच्चे वहाँ बोर्ड पे वर्क करा दिया जाता है, बच्चे लिख लेते हैं, नहीं सुनाते हैं तो उन्हें डांट पड़ती है, फिर से याद करने के लिए कहा जाता है। तो वो जो एक जनरल वे है जो कि हम फॉलो करते हैं, सेम वैसा ही वे चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर मॉन्टेसरी मेथड को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें मॉन्टेसरी मेथड के अकॉर्डिंग बच्चों को उस एनवायरनमेंट में, उनके एनवायरनमेंट में विदाउट फोर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज नॉलेज लेने के लिए बिल्कुल फ्री छोड़ना है। और टीचर एज ए गाइडर वहां पे वर्क करेंगे। टीचर्स भी यहाँ पे जो है वो किसी मैजिशियन से कम नहीं होते, किसी जादूगर से कम नहीं होते, क्योंकि वो जो बच्चा है, उस बच्चे को जिसके पास अभी कोई नॉलेज नहीं है, आप उसको जो सिखाओगे, जो समझाओगे, जो सुनाओगे, वही वो सुनेगा। तो अब उसमें अगर आपको उसे एक अच्छा इन फ्यूचर वो जो है जाके एक अच्छा स्टूडेंट बने, अभी से उसे इस तरीके से गाइड कर दिया जाए, तो अगर इस वर्क को वहां जो लोग कर रहे हैं, जो टीचर कर रहे हैं, वो एक मैजिशियन ही है, एक कलाकार है। और यहाँ पे एक और मेथड है बैंक स्ट्रीट मेथड। ये बैंक स्ट्रीट मेथड भी ऐसे ही बच्चों से जुड़ा हुआ है जो कि बिलो 6 इयर्स हैं, बिलो 5 इयर्स हैं, और अमेरिकन स्कूलों में इसका काफी बड़े पैमाने पे यूज होता है बैंक स्ट्रीट मेथड का। और ये बैंक स्ट्रीट मेथड भी, यानी कि इन सभी मेथड में, मैं फिर से कहता हूं कि इन सभी मेथड्स में, मैंने अभी हमने जितने भी मेथड्स डिस्कस किए हैं, इन सभी मेथड्स में अगर कुछ सबसे कॉमन है तो वो यही है कि टीचिंग विदाउट फोर्सफुल एनवायरनमेंट, विथ नेचुरल एनवायरनमेंट, विथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। अब कहीं पे एक्टिविटीज खेलकूद वाली होती है किसी मेथड में, किसी मेथड में एक्टिविटीज आर्ट और इमेजिनेशन और स्टोरी से जुड़ी हुई होती है, लेकिन एक्टिविटीज बेस्ड मेथड और प्लस फोर्सफुल न हो। तो विदाउट फोर्स एंड विथ एक्टिविटी, जितने भी मेथड हैं उनमें ये बिल्कुल कॉमन है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इन सबके प्रिंसिपल्स की, जो टीचिंग प्रिंसिपल्स क्या है, तो देखिए टीचिंग, यहाँ पे टीचिंग प्रिंसिपल की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये जितने भी मेथड अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, चाहे बात वो मॉन्टेसरी मेथड की हो, चाहे बात बैंक स्ट्रीट मेथड की हो, चाहे उससे पहले जो मैंने वॉल्डोर्फ मेथड आपसे डिस्कस किया, इन सारे मेथड को अगर आप देखोगे तो इन सब के पीछे है टीचिंग का प्रिंसिपल। यानी जो टीचिंग का सिद्धांत है वो यही कहता है कि टीचिंग इफेक्टिव होनी चाहिए। अगर आप